Greetings, everyone. Welcome to the seventh and the final lecture of Economic Survey. In this particular lecture, we are going to discuss the important aspects that are yet to be discussed and covered. In this particular lecture, we are going to discuss about the external sector. Now, when I'm talking about external sector, what all are included in the external sector, we have to discuss. You see, Economic Survey has stated that we need to remain watchful and we also need to remain hopeful. Now, when we talk about external sector, it simply means export import. It also means that what is the prevalent market condition internationally and how India is trying to maneuver it. You must have seen recent episodes where finance minister has continuously stated that it is not the rupee that is going down, it is the dollar that is going up. Now she must have received, and she did receive, a lot of criticism also. But then we will be looking into the conditions of domestic market as well as international market, and we'll try to understand how RBI and both finance ministry have taken corrective measures. Along with this, physical and digital infrastructure. The physical and digital infrastructure is also very important if you're talking about lifting the potential growth. So earlier, before the digital revolution and everything, there was only one kind of infrastructure: physical infrastructure. Computers were not that cheap, mobile phones were not that readily available, they were also very costly tools. Internet penetration was not there. Before 2009, in fact, internet was not that common. Everybody did not have a bank account, and likewise. So, physical and digital infrastructure, there is a blend of both these infrastructures, and it is going to change the very nature of Indian economy. You know that we are targeting to become 5 trillion economy, and in that, the role of physical and digital infrastructure is paramount. So, with this regard, this particular economic survey, lecture 7, is designed, and this will be the wrap of the complete economic survey. I understand that you have patiently dealt with all the preceding chapters, but please don't forget the fundamentals that we have studied in all these chapters, because somehow you will find their reflections to be there in this particular chapter as well. Now, when we're talking about India's external sector, has been buffeted by shocks and uncertainty manifested in terms of. So basically, this is talking about the conditions which were prevalent, and the conditions, or you can say it is talking about the state of the Indian economy with respect to the external sector. In this, it states you that जो commodity का price है globally, it is increasing. The commodity prices globally have been increasing. There has been, just a minute, there has been a tightening of international financial conditions. Now, tightening of international financial conditions means that बाहर के कंट्रियों की जो बैंक्स हैं वो भी अपने आप पे कुछ इस तरीके की चीज़ें ले रही हैं कि उनका करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू ना करे. टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस का मतलब ये रहता है, आप सिंपली समझेंगे, जो मनी का फ्लो होता है. टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस आप समझेंगे, इसको रिप्लेस करिए अपने दिमाग में इस वर्ड से कि जो मनी का फ्लो है वो बहुत तेज़ी से कम होगा. मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ रही है. इसका मतलब ये है कि मार्केट वल्नरेबल हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट वल्नरेबल हो रही है. प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, शेयर्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं बहुत तेज़ी से. कंपनी सडनली प्रॉफिट में आ जा रही हैं और वही कंपनी सडनली लॉस में चली जा रही है. इसको कहते हैं मार्केट कंडीशंस बहुत वॉलेटाइल हैं. मार्केट कंडीशंस तब वॉलेटाइल होती हैं जब डिमांड और सप्लाई जो है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, और ऐसे चेंजेस आ जाएं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं हो. वो डिपेंडेंट हैं बाहरी फैक्टर्स पे, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स. रिवर्सल ऑफ कैपिटल फ्लोज ऑल्सो. रिवर्सल ऑफ कैपिटल फ्लोज, देखिए किसी भी कंट्री में अगर कैपिटल इनसाइड आता है तो इकोनॉमी को पे क्या असर पड़ेगा. कैपिटल इनसाइड, कैपिटल इनफ्लो जब होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है, तो इकोनॉमी ऊपर जाती है. लेकिन यही अगर कैपिटल आउटफ्लो करने लगे तो इकोनॉमी नीचे जाने लगती है सेकंड केस में. तो यहाँ पे इंडिया के फैक्टर में देखा गया कि कैपिटल फ्लोज जो हैं वो रिवर्स हो गए, यानी कि जो भी बाहर से पैसा आ रहा था भारत में वो वापस जाने लगा, और उसके साथ हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट जो है
वो जुड़ा हुआ है, और ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए कि ग्लोबल जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रो करेगी, वो भी उसका भी रेट कम हो रहा है। अब अच्छी बात यह है कि हमने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे में देखा है अपने कि पूरी दुनिया जहाँ पे 3% से ग्रो कर रही है, फोरकास्ट है कि और कम हो सकता है ये, वहीं पे इंडिया की इकोनॉमी ने रेजिलेंस शो करते हुए फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी का जो ट्रेंड है उसको अपनाया है। हमारी इकोनॉमी ने रेजिलेंस शो इसलिए किया क्योंकि बहुत हद तक बाहरी फैक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी को दबा नहीं पाए, इसलिए जो कंडीशंस हैं वो हमारे लिए कंड्यूसिव हैं अभी कि हम अपनी कैपिटल को बचा सकें, बाहर के इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिखा सकें और अपनी इकोनॉमी को रिबाउंड कर सकें। लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी हद तक डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया ने इन सभी हेडविंड्स को फेस किया और एक स्ट्रेंथ शो करी अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और बफर्स में। इंडिया के पास सफिशिएंट कुशन था जो कि इस झटके को क्या कर गया, झेल गया। तो यहाँ पे लिखा है फॉर द ईयर 2023-22 इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इट हैज़ डिस्प्लेड रेजिलियंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स थे। प्लीज़ मेक अ नोट। एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। साथ में भारत ने अपनी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है उसको भी इम्प्लीमेंट किया। ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को इन्हांस करने के लिए आई थी, जिसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर उनमें कोई डोमेस्टिक फ्रिक्शन आ रहा है, यानी कोई मान लीजिए कोई आइटम जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है और जाना है लेट से वो गल्फ कंट्री में, तो उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, और गुजरात और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट्स और यूपी की गवर्नमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कस्टम बैरियर्स नहीं होने चाहिए, ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, ईजी मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी होना चाहिए। तो इन सभी बैरियर्स को रिमूव किया है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इनकरेज हुआ है। इंटरनल लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है उसमें भी कॉस्ट भी कम करने की कोशिश की गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। आपको जैसे कि पता होगा यूके, यूरोपियन यूनियन, ये दो ऐसे देश हैं, और कनाडा, जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी अंडर नेगोशिएशन हैं। इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी अंडर नेगोशिएशन है। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे कराया जा सकता है। और यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब होता होगा, ज़रा आप सोचिए। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तब होता है जब दोनों अर्थव्यवस्थाओं को, दोनों इकोनॉमीज़ को पता है कि वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से सारे ही प्रोडक्ट्स फ्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किए जाते। जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो तुम हमसे ले लो, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम तुमसे ले लेंगे, और उसमें तुम टैक्सेस कम लगाओगे, यानी तुम अपनी इनकम कम करोगे। बिकॉज अल्टीमेटली पीपल विल गेट अफेक्टेड। गवर्नमेंट्स तो कमा लेंगी मे बी, लेकिन अगर वो ज़रूरत पब्लिक यूटिलिटी है तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए एक्सटर्नल फ्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा तरीका होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, और जहाँ पे आप टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से पूरे इकोसिस्टम को बनाया गया एक्सपोर्ट फ्रेंडली मैनर में, समय में। तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड, फैक्टर्स दैट शो दैट एक्सटर्नल प्रेशर could not vitiate इंडियन इकोनॉमी। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को बचा ले गए? तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का आप यही लिख सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का रेजिलियंस था। दूसरा, एक्सपोर्ट जो है वो अपटिक में था। तीसरा पॉइंट, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी।
चौथा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये 4 कंडीशंस आप लिख के बता सकते हैं, और 5वां आप लिख सकते हैं कि और भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे अंडर नेगोशिएशन है। अपार्ट फ्रॉम द एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो तेल के दाम है वो बढ़ गए। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रूड ऑयल प्राइसेस से झेल ही रही थी, पहला रीजन, जो कि रीजन फॉर शॉक्स हैं या रीजन फॉर प्रेशर ऑन इंडियन इकोनॉमी। शॉक्स नहीं है, कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पे बाहर से क्या प्रेशर पड़ रहा है। तो पहला प्रेशर यही था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल जो है के प्राइसेस जो हैं वो महंगे हो गए। दूसरा जो था वो था कि इंपोर्ट्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो गए। जब इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका किस पे असर पड़ता है, और ये पूरा असर पड़ता है आपके कैड पे, करंट अकाउंट डेफिसिट पे। ये कैसा हो जाता है, ये वाइडनिंग नेचर का हो जाता है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हो जाता है तो ये क्या करता है, ये 2 चीज़ों पे असर डालता है। ये रुपी को डेप्रिशिएट कर देता है, रुपी डेप्रिशिएट भी हो सकता है। रुपी डेप्रिशिएट कई कारणों की वजह से होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण कैड भी होता है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो रेवेन्यू के पार्ट पे गवर्नमेंट करती है इंटरनली, उसी तरीके का कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इंपोर्ट ही करने होगे, उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेटिव क्रिएट भी करने जाओगे तो समय लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर तेल की बात करें तो तेल हम मंगाते हैं, पर तेल का हम तुरंत सब्सटीट्यूट नहीं क्रिएट कर सकते। इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब तरीके हो सकते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी क्रिएट करने का, लेकिन क्या इमीडिएट में कुछ क्रिएट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन लंबा प्रोसेस होता है ना। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट में जहां हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, इससे इंडिया की इकोनॉमी को लंबे समय में बहुत गहरा झटका भी पड़ सकता है। तो इसीलिए ये प्रेशर डालता है कैड फॉरेक्स रिजर्व पे, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व से पैसा झोंकना स्टार्ट कर देते हैं कैड के गैप को फिल करने के लिए। तो इस पे क्या होता है, अंडर स्ट्रेस आते हैं ये 2 चीज़ें, और ये जब 2 चीज़ें स्ट्रेस आते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इंटरनेशनल टर्म्स में वॉलेटाइल हो रही है। पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल, गोल्ड, ये सब टॉप इंपोर्ट आइटम्स थे। विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट यू विल फाइंड पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोल, machinery, non-electrical, electrical and gold, they were top import items. Efforts were underway to improve या promote international trade not by our dollars but by Indian rupees. Now we call it, आज के ट्रेंड में, ट्रेंड और एनालिटिक्स में अगर इसको देखें तो अक्सर हमें एडिटोरियल्स भी आते हैं जो कि डी डॉलराइजेशन एरा की बात करते हैं, कि ये पूरा दौर जो चल रहा है ये डी डॉलराइजेशन का चल रहा है, और इसी में से हमारी फॉरेन करेंसी जो है अगर वो रिड्यूस भी हो जाए, मतलब हमारी फॉरेन करेंसी क्या, अगर कुछ दूसरे डॉलर पे हम डिपेंडेंट हैं, अगर वो रिड्यूस भी हो जाए तो हमारी इकोनॉमी पे शॉक नहीं पड़ेगा, राइट। और अल्टीमेटली हम इकोनॉमी की इंटरनेशनल पोजीशन को कैसे देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और मैंने आपको बताया ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, विद द इम्पैक्ट ऑफ शार्प राइज इन ऑयल प्राइसेस, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, नॉट विस्टैंडिंग वाइड करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हो रहा है, राइट। पॉलिसी टाइटनिंग बाय द यूएस फेडरल रिजर्व, पॉलिसी टाइटनिंग बाय द यूएस फेडरल रिजर्व लेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस डॉलर and led to foreign portfolio investment outflows, FPI outflows. These are the factors that ultimately led to current account deficit being widened. But interestingly you will find here कि current account deficit wide हुआ, लेकिन कुछ cushion भी था हमारी इकोनॉमी में, जो एकदम इनके झटकों को एकदम बहुत बुरी तरीके से हमें नहीं हिलाया इसने, क्योंकि कुछ इनविजिबल्स थे, कुछ इनविजिबल्स हैं इंडियन इकोनॉमी में
जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को बहुत तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है। सर्विस ट्रांसफर और इनकम, इस कंटेक्स में भी पूरे इस लेक्चर में बात होगी। एज अ रिजल्ट द सरप्लस ऑफ द कैपिटल अकाउंट वॉज लोअर। अब हमारा इन्हीं वजह से पैसा क्योंकि बाहर जा रहा है तो हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो नीचे जा रहा है, यानी हम फाइनेंशियल सिस्टम्स फाइनेंस जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लोअर देन कैड और फॉरेक्स रिजर्व हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस पे डिप्लीट होने लगे। तो ये पूरा चीज़ मैं आपको अभी पहले जस्ट बता चुका हूँ। हाउएवर आगे अगर देखें गोइंग फॉरवर्ड तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो थोड़े से इजी होने वाले हैं, सस्ते होने वाले हैं। नेट सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इनवर्ड रेमिटेंसेस ये सब हमारे कैड को प्रेशर से बचा सकते हैं ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ 2023 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन सस्टेनेबल लिमिट्स। नाउ व्हेन आई से दिस व्हाट डू वी मीन बाय दिस? वी सिंपली मीन कि क्रूड ऑयल प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी में जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और इनवर्ड रेमिटेंसेस यानी भारत के लोग जो बाहर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है वो भारत वापस आएगी, तो ये इनवर्ड रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगे। डिक्लाइंड ग्रोथ रेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में दो बड़े झटके आए, टू ग्लोबल शॉक्स। अब भारत की अर्थव्यवस्था को इन दो बड़े झटकों से जूझना पड़ा। पहला एक इकोनॉमिक शॉक था, और इकोनॉमिक शॉक ये बात कर रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-2008 में आई थी, जिसके बाद आप देखेंगे कि ईस्ट एशिया समिट और इंडिया एशियान का फ्री ट्रेड, जिसके बाद G20 का बनना, राइट, जिसके बाद G20 का और G20 प्लस का बनना, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिली थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-2008 के बाद। उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो थे उनको कम करने के लिए सभी इकोनॉमीज़ ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को कम रखा काफ़ी लंबे समय तक। जब इंटरेस्ट रेट कम थे तो लोन ईजिली लोग ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और उससे क्या हुआ, फाइनेंशियल कंडीशंस बड़ी सपोर्टिव थी और उससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी जो कि 4.5% पहुंच गई 2010 तक। लेकिन फिर सडनली 10 साल के गैप में कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया जिसने ग्लोबल ग्रोथ परफॉर्मेंस पे गहरा झटका दिया और इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव हो गई, -3.8% हो गई। और उसके बाद जो 2 ईयर्स और आए उसमें इन्फ्लेशन रेट्स मल्टी डेकेड हाई पे चले गए। इतनी महंगाई दशकों में नहीं देखी गई थी। ग्लोबल कमोडिटी और फूड प्राइस हाइक्स जो थे ये भी बढ़ गए, और फिर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये वर्जनिंग कंडीशंस हमको इंडिकेट हो रही हैं कि जो बाहरी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, खतरनाक चल रही है, वो इतनी प्रॉपर नहीं है। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो फोरकास्ट है वो डिक्लाइंड आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 2 रीजंस दिखाई दे रहे हैं। एक 2007-2008 की क्या इकोनॉमिक शॉक, और फिर आया आपका हेल्थ शॉक। इससे बचने के लिए, इसके बुरे इम्पैक्ट से बचने के लिए क्या हुआ, इसके बुरे इम्पैक्ट से बचने के लिए यूएस की इकोनॉमी ने क्या किया, मैन्यूवरिंग करी। कैसे मैन्यूवरिंग करी वो भी देखते हैं। यूएस की इकोनॉमी ने जो मैन्यूवरिंग करी है उसमें वहाँ की जो फेडरल बैंक है, यूएस की जो फेडरल बैंक है, राइट, उस फेडरल रिजर्व, उसने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन में क्या है, अब कह रहा है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड यूएस में इंक्रीज हो गई ऑलमोस्ट 6 फोल्ड बिटवीन 2020 एंड 2022। ये क्या होता है 10 ईयर, देखिए यूएस गवर्नमेंट को क्या चाहिए, यूएस गवर्नमेंट नीड्स मनी, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। यूएस गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो बोरो कहाँ से कर सकता है, वो मार्केट से कर सकता है या वो वहाँ की फेडरल बैंक से कर सकता है। तो यूएस की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए है, वो मार्केट या फेडरल बैंक से वहाँ से बोरो कर सकता है। फेडरल बैंक कह रही है कि देखिए अभी हमारे पास क्या है, उतना रिक्वायरमेंट, उतना पैसा है नहीं जितना आपको हम दे सकते हैं। तो कोशिश करते हैं, फेडरल बैंक ने कहा कोशिश करते हैं कि जो भी पैसा लगा हुआ है
फेडरल बैंक एक तरीके से आरबीआई समझिए आप वहाँ की, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। तो वो फेडरल बैंक कह रही है कि इस समय हमें अपनी बैंकों को पैसा देना है ताकि वो बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। पर यूएस गवर्नमेंट ये कह रही है कि जितना प्रेशर हमारी करेंसी पे आ रहा है, हमारी कंट्री पे आ रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर जो है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका का जा रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका का जा रहा है। ऐसे केस में अमेरिका का ये कहना है कि हम मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं। जब मार्केट से कोई गवर्नमेंट पैसा उठाती है तो आपने इकोनॉमिक्स में अपने पढ़ा होगा कि वो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड दे रही है, गवर्नमेंट आपको कह रही है कि यार मुझे उधार दे दो और मैं तुमको लंबे समय पे अच्छा खासा रिटर्न दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि 10 ईयर यील्ड जो है यूएस में वो इंक्रीज हो गई 6 गुना 2002 साल के अंदर अंदर। तो अब बाहर जो जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास पैसा है, वो दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं। तो उनको पता है कि दूसरे देशों में पैसा लगाएंगे तो यार हम ग्लोबल शॉक से तो बचे नहीं रह सकते। मान लो उसकी इकोनॉमी फेल कर गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा। पर अगर हमको सरकार जो है वो कह रही है कि हम तुमको ज़्यादा रिटर्न देंगे तो वो पैसा मंगा के अपनी सरकार को दे दो। यही किया यूएस की गवर्नमेंट ने। यूएस की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स को हाई कर दिया। अब उससे क्या हुआ, सब पैसा अपना वापस मंगाने लगे। जितने भी रिस्की एसेट्स थे वो सब क्या कर दिए गए, बेचे जाने लगे। और उसकी वजह से ट्रिगर हुआ कैपिटल फ्लाइट। यानी यहां इंडिया में इंडिया में जो पैसा लगा हुआ था वो डॉलर क्या होने लगा, बाहर जाने लगा। कैपिटल फ्लाइट कहते हैं इसको। कैपिटल फ्लाइट हुआ कहाँ पे, सिर्फ इंडिया में नहीं, सभी इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट इकोनॉमीज में, जिससे कि नेट कैपिटल फ्लोज जो हैं उस पर रुकावट आई, पैसा आ नहीं रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे पैसा उल्टा बाहर जा रहा है 2020 के बाद से। और उसी में यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर गया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के कंपैरिजन में। और मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज के पास अब बोरोइंग कॉस्ट जो है वो हाई हो गई, हाई बोरोइंग कॉस्ट। यानी दूसरी करेंसीज जो है वो वीक होती जा रही हैं क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस अप्रैल 2022 से टाइटनिंग होने लगी और वहाँ पे बैलेंस ऑफ रिस्क आया जो कि हमें निगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो भी घटते हुए नज़र आ रहा है। तो ये यूएस की इकोनॉमी के मैन्यूवरिंग की वजह से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ज़्यादा करना, वहाँ की फेडरल बैंक का अपना रेपो रेट बढ़ा देना, इसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो हुआ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज से और उसका असर पड़ा ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट पे। ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट टू स्लो फ्रॉम 6% to 3.2% in 2022 and to 2.7% in 2023 according to IMF। तो ग्लोबल इकोनॉमी में तो झटका ही आने वाला है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में निगेटिव इम्पैक्ट कैसा देखा जा रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में कई सारे प्रेशर्स हैं। जैसे बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, उनमें महंगाई, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा। कमोडिटी मार्केट्स जो हैं वो वॉलेटाइल रहेंगी। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी अनसर्टेन है और एडवांस इकोनॉमीज के पॉलिसी टाइटनिंग से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ये सब चीज़ें आपके आंसर या नोट मेकिंग में आ जानी चाहिए क्योंकि ये आपको क्या करता है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी बेस देता है आपको, जहाँ पे आप समझा सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को क्या फ़र्क पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में इस बार देखा गया कि जो ट्रेड है वो भारत की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक बचा ले गया। ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड की अगर हम बात करें, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें, एक्चुअल और फोरकास्ट की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि वो पीक पे था 2021 में और अभी क्या है, आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड ओपननेस ऑफ कंट्री कहता है, अगर ग्लोब में, दुनिया में ट्रेड ओपननेस है, ओपन ट्रेड हो रहा है, तो हम उसको मेज़र करते हैं कितना ट्रेड हो रहा है जीडीपी के प्रपोर्शन में।
तो पूरी दुनिया की बात करें तो ट्रेड का जो परसेंटेज है जीडीपी के कंटेक्स्ट में वो 50 to 60% है सिंस 2003, और 2020 में 52% हुआ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। यानी ट्रेड पूरी कंट्री की अर्थव्यवस्था में कितना परसेंटेज जीडीपी का है करंटली? 52% मान के चलते हैं। तो 52% जीडीपी का कहाँ से जनरेट हो रहा है? ट्रेड से हो रहा है। इंडिया में भी अगर बात करें परसेंटेज ऑफ जीडीपी में, तो ट्रेड जो है वो इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है। 2005 में रफली हमारे जीडीपी का 40% ट्रेडिंग से आता था, और अभी क्या है 46% और करंटली 50% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। सो ऑलमोस्ट इंडिया का जो ट्रेड है जीडीपी के कंपैरिजन में, ग्लोबल का जो ट्रेड है जीडीपी के कंपैरिजन में, वो ऑलमोस्ट सिनोनिमस है, एक जैसा ही है। इंडिया के अगर आप ट्रेंड्स को देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा ये वर्ल्ड ट्रेंड्स हैं, है ना, ट्रेड के, और ये इंडियन ट्रेंड है। तो वर्ल्ड ट्रेंड और इंडियन ट्रेंड में ज़्यादा गैप नहीं है। यानी कि इंडिया ने जो अपना हाई एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है 422 बिलियन का, उसकी वजह से देखा कि ट्रेडिंग्स की वजह से हमारे इकोनॉमी में भी झटके कम लगे। ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं अब, कि भाई आखिरकार भारत ऐसा क्या बेचता है बाहर। ठीक है, तो पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स, इनको एक कैटेगरी बोला जाता है POL एक्सपोर्ट्स, और नॉन पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स के अलावा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स की बात करें POL में तो 21.1% POL था, नॉन POL 78.9% था टोटल एक्सपोर्ट्स का। अब ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा कि इंडिया जो है पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स का मात्र 20%, 21.1, क्लोज टू 20% एक्सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट 80% क्या करता है? नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन पेट्रोलियम मर्चेंडाइज कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट इंडिया में जो तेल बनाने वाली कंपनीज हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनको भी ये दिखाई दे रहा है कि ये मार्केट में तेल बेचने का समय है। उसके बाद जेम्स, ज्वेलरीज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। और यहीं अगर बात करें तो कोविड-19 की वजह से ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ देखा गया। राइट, इसमें ग्रोथ मोमेंटम देखा गया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ग्लोबल इकोनॉमी नीचे जा रही है। इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स जो हैं कोविड के इम्पैक्ट की वजह से जो बढ़ गए, 15.4 बिलियन हुआ करते थे 2015 में, 24.6 बिलियन, 24.6 बिलियन हो गए 2023 में, 18.8 बिलियन थे दिसंबर के अराउंड में। 3.6% का पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया है 2021 के कंपैरिजन में। 3.6% का ग्रोथ देखा गया है किस सेक्टर में? फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। इंडिया के मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो अब आप देखेंगे नॉन POL इंपोर्ट्स हमारे अभी भी ज़्यादा हैं। 2022-23 की बात करें तो इंपोर्ट्स देखिए हमारे थोड़े से कम हुए। जब इंपोर्ट्स कम होते हैं तो ये पॉजिटिव साइन होता है। नॉन एसेंशियल आइटम के इंपोर्ट्स अगर कम हो तो ऑब्वियसली ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स जो हैं वो भी आपको दिखाई देगा कम होते हुए नज़र आएंगे, और POL इंपोर्ट्स जो हैं उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है लगातार 3 साल में। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड्स जो हैं ये आपको बताते हैं कि इंडिया की कंडीशंस में देखो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऑयल का इंपोर्ट कम ना होना ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन नॉन POL इंपोर्ट्स का कम होना ये पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। अब इससे हम क्या क्या एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं? हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि भारत के लोगों ने अपना कंजम्पशन लग्जरी आइटम्स का या ऐसे आइटम्स का जो इंपोर्ट करते थे वो कम कर दिया है। ये भी हो सकता है कि उसका सफिशिएंट ऑल्टरनेटिव इंडिया में अवेलेबल होने लगा हो 3 साल में, इसलिए उसकी ज़रूरत कम पड़ रही है। पर अगर ये प्रॉमिसिंग ट्रेंड क्या रहेगा कि जो नॉन पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट और नॉन गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डाउनस्लाइड करते रहें, नीचे जाते रहें, और हमारा जो पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट का इंपोर्ट जो है वो स्थिर रहे या धीरे 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 डिक्लाइन करे। राइट, ऑब्वियसली पेट्रोलियम POL इंपोर्ट्स का जो POL पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स का जो इंपोर्ट है उसका जो डिक्लाइन रेट रहेगा, यानी घटने का जो रेट रहेगा वो कम रहेगा देन डिक्लाइन रेट ऑफ
नॉन POL इंपोर्ट्स। तो एक साल में नहीं कह सकते कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जाएगी, बट अगर यही ट्रेंड फॉलो होता रहा, बढ़ता एक्सपोर्ट घटता इंपोर्ट, तो भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। अब उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जो भारत को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सेकंड पे UAE है और तीसरे पे नीदरलैंड्स है। पहले चाइना हुआ करता था, नीदरलैंड्स ने चाइना को डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम द थर्ड स्पॉट एज इंडियाज एक्सपोर्टिंग पार्टनर। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट इन 2022-23 USA, UAE और नीदरलैंड्स हमारे लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस थे। इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को भी डाइवर्सिफाई किया इसी दौर में। जैसे साउथ अफ्रीका में जो एक्सपोर्ट हम करते थे वो हमारा 1.2% से लगभग 2% बढ़ चुका है। इसी पीरियड में ब्राज़ील से भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है, सऊदी अरेबिया से भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अब अगर मैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया की बात करूं तो देखिए इंडिया G20 में भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की जो बात है वो करने वाला है। तो बढ़ते एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज़ का आपका जो रिश्ता है, विश्वास जो है दूसरी कंट्रीज़ को आप पे, वो क्या है? बढ़ते हुए, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आता है। और अगर आप डाइवर्सिफाई कर पाओगे अपने एक्सपोर्ट को तो आप फिर बहुत हद तक सिर्फ 2-3 देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स, China, UAE, USA, Russia and Saudi Arabia have a joint share of 40% of the total imports of India. This is very important, right? China, UAE, USA, Russia and Saudi Arabia. However, share of China declined to 13.8% from 15.5%. Share of USA declined, तो डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है हमें। इसी दौर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें अगर भारत की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स 2022 में कहा गया कि ये इट वाज द ईयर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जहां पे इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। हमें ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिलता है, उनका जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं क्योंकि उनको डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, उनको फॉरेन मार्केट में भी अपना माल बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दे आर ऑल्सो कंपीटिंग विथ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ UAE एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट? क्योंकि वहाँ का माल यहाँ बिकेगा, तो हमारे यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको खतरा है, तो वो अपने प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ के जो बिजनेसेस हैं जो UAE ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं, उनको वहाँ की कंपनीज के साथ कॉम्पीट करना है। अगर अपना माल ज़्यादा बिकवाना है तो वहाँ पे भी प्रेशर होगा, पर हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव होंगे। इसी के रूप में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स प्रिपेयर किया है, जो कि स्टेट के पोटेंशियल और कैपेसिटीज़ को इवैल्यूएट करता है, राइट? और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत होने में नेशनल सब नेशनल लेवल में मदद करता है। एक्सपोर्ट ग्रोथ बेसिकली ड्रिवन कैसे था? क्योंकि प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम, कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब इनकी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई। इंडिया इन सभी प्रोडक्ट्स के जो सप्लाई गैप्स हैं उनको क्या कर पाया? लेवरेज कर पाया, उनको यूज़ कर पाया और इंडिया ने प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखा गया पैंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस की वजह से, वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में चले गए, इंडियाज फेवर में चले गए। एक्सपोर्ट्स वर ऑल्सो हेल्ड बाय फेवरेबल कमोडिटी प्राइसेस। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स जिसने ये बहुत मदद की, जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इंडिया का फोकस काफ़ी ज़्यादा था, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 2022 में 37.8 बिलियन का हो गया एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल, राइट? अलॉन्ग विद दिस इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कई सारी यूनियन टेरिटरीज जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बात करें तो एपेडा ने कश्मीर घाटी को के स्टार्टअप्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को मिला दिया। जैसे कश्मीर का सैफरन है, केसर, जिसको GI टैग मिला हुआ है, ये मिडिल ईस्ट, EU और नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी डिमांड में है। तो इससे हमको दिखाई देता है कि इंडिया ने कोशिश की अपने एक्सपोर्ट साइड पे वर्क करने की। रॉड टेप स्कीम, ये स्कीम आपके एक MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स।
ये स्कीम कैसी है? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है। कैसी है? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। आप अगर कोई आइटम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो उसमें हम टैक्स, गवर्नमेंट जो है, एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट, वो टैक्स नहीं लगाएगी, राइट। इसीलिए सेंट्रल, स्टेट और लोकल ड्यूटीज से आपको इजाज़त मिलेगी और आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं और ड्यूटी रेमिशन स्कीम में आप वापस ले सकते हैं, राइट। ये ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, यानी आपका जो भी खर्चा लगा है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में, आपको उससे रेमिशन मिल सकता है। एक्सपोर्ट की क्रेडिट गारंटी है, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाई गई क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स और बैंक्स को एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज देती है। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो है, ये इंश्योरेंस कवर देती है एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में, ताकि एक्सपोर्टर्स पेमेंट रिस्क के कॉन्सिक्वेंस से बचे रहें। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक को भी देती है टू प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गिवन टू एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। ईसीजीसी, 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 ईसीआईबी, ईसीआईबी और रॉडटेप। जहां कहीं पे भी आपको ये स्कीम्स दिखाई दें, आप तुरंत अपने दिमाग में समझ लीजिएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात हो रही है। फर्दर इफ यू मूव अहेड, कृषि उड़ान स्कीम गवर्नमेंट लेके आई, जहां पे 2020 अगस्त में इंटरनेशनल और नेशनल एयर ट्रैवल, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फार्मर्स की मदद करने के लिए अनाउंस किया गया, जिसपे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं? ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर कृषि उड़ान 2.0 आया, जिसको अक्टूबर 2021 में, एक साल बाद लॉन्च किया गया, जिसमें हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज और ट्राइबल एरियाज को पेरिसेबल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ाया गया। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला गया कि लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल चार्जेस, रूट नेविगेशन फैसिलिटी, ये सब हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको फ्री में दे दीजिए, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन से किया जा सके। होगा क्या? आइटम फटाफट जा सकेगा। पेरिसेबल प्रोडक्ट, सब्जियां हो गई, फल फ्रूट्स हो गए, ये खराब हो जाते हैं, तो इनको जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है। तो कृषि उड़ान 2.0 और कृषि उड़ान स्कीम से काफ़ी मदद हुई, राइट। 5 एयरपोर्ट्स और जोड़े गए और टोटल 58 एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चार्जेस लेने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम की योजना लॉन्च की, जहां पे हम हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन, मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में यूज करेंगे ग्रास रूट्स लेवल में, जहां पे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे और इंडिया को एक्सपोर्ट पावर हाउस बना देंगे, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर मिशन एंड अचीविंग द विजन ऑफ मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एंड वोकल फॉर लोकल। This initiative is aimed to foster balanced regional development also across all districts of the country. It seeks to select brand, promote products and services from each district of the company for enabling holistic socio-economic growth across all regions. Attract investment in the district to boost manufacturing and exports. The invisibles. If we talk about the invisibles, तो नेट सर्विसेज रसीद जो है, अब इनविजिबल्स हमने आपको बताया था ना कि इन्होंने क्या किया, कुशन की तरह काम किया, भारत को बाहरी झटके कम लगे इन इनविजिबल्स की वजह से। तो नेट सर्विस रिसीव्ड जो है वो 51.4 बिलियन से बढ़ के 65 बढ़ गई। तो सर्विस सेक्टर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा काम किया। रॉबस्ट कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज रिसीट्स जो हैं उसमें इजाफा देखा गया, यानी सॉफ्टवेयर लेड चीज़ें, सॉफ्टवेयर या टेक लेड चीज़ें जो हैं, सर्विसेज जो हैं वो बढ़ी। नेट प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स जो हैं, रेमिटेंसेस की बात करें, जो इंडियंस एम्प्लॉयड है ओवरसीज में, वो भी बढ़ गया, रेमिटेंस भी बढ़ गया। क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से, डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर की वजह से रेमिटेंस फ्लो जो है सीम टू हैव बूस्टेड फ्लोज इनटू इंडिया। नेट सर्विसेज, अब रेमिटेंस कैसे बढ़ जाता है? देखो, आज अगर $1 80 रुपए का है और $1 क्या है 84 रुपीज का है, और आप अगर डॉलर्स में कमा रहे हो तो आप क्या करोगे? भारत भेज दोगे। डॉलर, वो जो कमाया हुआ डॉलर है वो आप भारत भेज दोगे।
तो यहाँ पे इंडिया का जो डायस्पोरा है, इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए कैसा ऑपोजिट सा ट्रेंड है। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन नेशनल रुपी अगर हो रहा है, रुपी नीचे गिर रहा है, तो आपको पता होता है कि इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा, हमारे लिए सामान खरीदना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उनके देश में कोई हमारे लोग बैठे हैं जो कमा रहे हैं, तो वो कमाया हुआ पैसा तो हमको दे सकते हैं, वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो वहीं डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर जो खतरनाक होता है रेमिटेंस की कंपैरिजन में, रेमिटेंसेस जो बाहर से पैसा आता है, इनकम जो दूसरे लोगों की, हमारे देश के लोगों की दूसरे देशों में रह रहे हैं उनसे जो इनकम होती है वो इंडिया में आती है। तो नेट सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस जो हैं उन्होंने इनविजिबल अकाउंट पे सरप्लस रखा, यानी प्लस पे रखा हमेशा चीज़ें, और हमारे मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट को कुशन किया। रेमिटेंसेस जो है गवर्नमेंट के लिए सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स होते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा नैरो हो पाया और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा स्टेबल रहा। इंडिया में, पूरे दुनिया में बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री है, राइट। यूएस $100 बिलियन के रेमिटेंसेस 2022 में मिले थे एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। Remittances have benefited from a gradual structural shift in India's migrants' key destinations from largely low-skilled, informally employment in Gulf cooperation countries to a dominant share of high-skilled jobs in high-income countries such as US, UK, and Singapore, Japan, Australia, New Zealand. पहले क्या होता था, लोग गल्फ में काम करने जाते थे, लो स्किल जो था, लो स्किल की वजह से रेमिटेंस जो था वो आता था। अब लो स्किल की वजह से रेमिटेंस ज़्यादा क्या ही आएगा। उसके बाद अब इंडिया क्या होने लगा है, हाई स्किल्ड जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे यूएस में, यूरोपियन यूनियन में, ईस्ट एशिया में, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनविजिबल्स ऊपर जा रहे हैं। टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 2022 की बात करें तो इंडिया जो है आपको दिखाई देगा, इट वाज एट द हाईएस्ट, फॉलोड बाय मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड लाइकवाइज। पाकिस्तान भी आपको इसमें दिखाई देगा, कहीं ना कहीं है। बांग्लादेश भी आपको दिखाई देगा, इंडिया के आसपास का देश, चाइना भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, अच्छा, ज़्यादा रेमिटेंस होने से क्या आपको और रिफ्लेक्ट होता है कि भारत में जो लो स्किल लेबर है वो ज़्यादा है, और हाई स्किल टेक्नीशियंस जो हैं, पढ़े लिखे लोग, राइट, कोई काम जानने वाले लोग, वो भी ज़्यादा हैं, राइट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस की बात करें, कैपिटल अकाउंट बैलेंस की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दो हमारे पास क्या होते हैं, तरीके होते हैं कैपिटल अकाउंट में ग्रोथ देखने के लिए। ये कैपिटल अकाउंट के लार्जेस्ट कंपोनेंट होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिस में जो कैपिटल इनफ्लोज हैं, राइट, वो क्या हो गए, 29 बिलियन जो है डिक्लाइन कर गए फ्रॉम 65 बिलियन। उसकी ये मेन रीज़न क्या था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पे भारत की कंपनीज में जो शेयर खरीद रखे थे बाहरी लोगों ने, वो क्या हो गए, बेच बेच के बाहर जाने लगे। एफडीआई इनफ्लो जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहा। एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई घटत नहीं देखी गई, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं बढ़ा, लेकिन थोड़ा आपको एफडीआई हल्का सा इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जाने की वजह से हमारे कैपिटल अकाउंट बैलेंस पे प्रेशर क्रिएट हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बात करें तो एडवर्स ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर आया है 2022 में। शार्प प्राइस राइज जो ऑयल प्राइसेस में हुआ, उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइड हो रहा था। यूएस की फेडरल बैंक ने जो टाइटनिंग पॉलिसी अपनाई, यूएस डॉलर को जो स्ट्रेंथन हुआ, उसकी वजह से एफपीआई बाहर चला गया, और इसकी वजह से नेट फाइनेंशियल इनफ्लोज फेल शॉर्ट ऑफ द कैड, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हुआ ऑलमोस्ट 25.8 बिलियन का। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर बात करें अभी फिलहाल तो 532.7 बिलियन है 2022 के सितंबर में, कवरिंग 8.8 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स। यानी कि अभी जो हमारे पास बैलेंस हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ये बताता है कि अगर हम कुछ भी ना खरीदें बेचें तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम लगभग 9 महीने का इंपोर्ट
अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फॉरेक्स रिजर्व में। रिजर्व्स ऑगमेंटेड टू समवेयर अराउंड 562.7 बिलियन दिसंबर 2022 में, कवरिंग 9.3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स, कवरिंग 9.3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स। राइट। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया वॉज एट अ 6th लार्जेस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय IMF। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ रुपी की बात करें, द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी इज मार्केट डिटरमाइंड एज RBI's इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज मेनली टू कंटेन इंस्टेंसेस ऑफ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। ऑन अ फाइनेंशियल ईयर बेसिस फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर INR डेप्रिसिएट किया 8.3% से डॉलर के कंपैरिजन में। अब कैसे देखते हैं, देखिए दो तरीके हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर और रीर। ये 2022 के UPSC में आया हुआ क्वेश्चन भी है दोस्त। अब यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस जो है वो पता चल जाएगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें। अब देखिए, अगर आपको ये देखना है कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा है कि डेप्रिशिएट कर रहा है, तो कौन से तरीके हैं, नीर और रीर। दो तरीके हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं करते, इन्फ्लेशन की वजह से रुपये की वैल्यू क्या ऊपर नीचे हो रही है वो कैलकुलेट नहीं करते। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपको रियल पोजीशन बताता है, तो जिसमें महंगाई इंक्लूडेड होती है। ये अपने दिमाग में बेसिक्स याद रखिएगा। US डॉलर के कंपैरिजन में अगर नॉमिनल रेट पे चले हम तो US डॉलर 7.8% से अप्रिशिएट किया, राइट। अगर नीर ऑफ इंडिया की बात करें तो वो 4.8% से डेप्रिशिएट किया। एक तरफ जितनी तेजी से US डॉलर ग्रो किया, उसके कंपैरिजन में इंडिया की करेंसी कम तेजी से नीचे आई, राइट। अगर 7.8% से मान लीजिए US डॉलर ग्रो कर जाता और 8% से हम कम हो जाते तो गैप बहुत ज्यादा हो जाता था ना। लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर उठा उतनी तेजी से हम नीचे नहीं गए, हमने रेजिलियंस शो किया, राइट। तो ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट दैट INR हैज वीकेंड बट इट इज द डॉलर दैट हैज स्ट्रेंथेंड। ये कह रहे हैं आपसे, जब US डॉलर की स्ट्रेंथनिंग आपके वीकनिंग के बराबर हो जाए, 8% US डॉलर ऊपर जा रहा है, 8% आप नीचे जा रहे हो, तब आप कहोगे ना कि इंडियन रुपी मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन 8% से वो ऊपर जा रहा है, लेकिन हम तो बस 5% से नीचे जा रहे हैं, तो US डॉलर ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है, राइट। क्रॉस कंट्री कंपैरिजन में बात करें इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में तो रीर होता है, और इंडिया का रीर डेप्रिसिएशन जो है वो भी 3.4% ही रहा। दोस्तों देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रही थी उस टाइम पे, राइट। लॉजिकल बेसिस पे कोई समझाना चाहे तो नीर और रीर के रेट के डेप्रिसिएशन रेट को बता सकता है। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। भारत के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या है? एक तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है IIP, दूसरा IIP है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन का। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन एक तरीके से स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी दैट आर क्लेम्स ऑन नॉन रेसिडेंट्स एंड गोल्ड बुलियन हेल्ड एज रिजर्व्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी टू नॉन रेसिडेंट्स। आप समझिए कि इंडियन सिटीजन्स को, राइट, ये पहला पॉइंट समझिए, फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी दैट आर क्लेम्स ऑन नॉन रेसिडेंट्स एंड गोल्ड बुलियन हेल्ड एज रिजर्व एसेट्स। अब हम इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, तो इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन एरिया से कितना पैसा लेना है, राइट, कितना पैसा, कितना डॉलर या कितना रुपए लेना है, और इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन सिटीजन्स को या फॉरेन बिजनेसेस को कितना रुपी जो है वो देना है। यानी एक तरफ हमारे यहां पे एसेट हम कितना बाहर से बना पाएंगे और कितनी लायबिलिटी हमारी है उनके प्रति क्या होगा, वो बताता है आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। अगर जितना पैसा आप बाहर से बना के ला रहे हो
वो जितना पैसा जा रहा है वो बराबर हो गया, तो इन्वेस्टमेंट पोजीशन न्यूट्रल हो गई। लेकिन अगर आपके यहाँ एसेट ज़्यादा है, यानी कि आपके लोगों को बाहर के लोगों से पैसा ज़्यादा लेना है ना, और भारत से बाहर कम पैसा जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो और बाहर के लोग पैसा लगा रहे हैं, राइट। एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी के डिफरेंस को नेट आईआईपी कहते हैं, जो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेट आईआईपी पोजीशन क्या डिटरमाइन करती है कि आप नेट क्रेडिटर हो या नेट डेटर हो, उधारी लेते हो या देते हो, राइट। एक्सटर्नल एसेट्स और लाइबिलिटीज में these statistics serve as an indicator of a country's financial condition and soundness. The net IIP along with balance of payment transaction ये पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी के को रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल कंपैरिजंस में। तो नेट आईआईपी और बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया के इन्वेस्टमेंट पोजीशंस की बात करें, अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन पे भारत कैसा था, तो इंडियन रेसिडेंट्स ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स एट यूएस $847.5 बिलियन वर लोअर और 7.9% डिक्लाइन हुआ है मार्च 2022 में। क्यों? क्योंकि रिडक्शन इन रिजर्व एसेट्स इवन एज ट्रेड क्रेडिट एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एन इंक्रीज। रिजर्व एसेट्स जो है हमारे कम हुए। रिजर्व एसेट्स 532.7 बिलियन है फॉर 62.9% ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स ओवर द सेम पीरियड। अब हमारे जो इंडियन रेसिडेंट्स ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो ज़्यादा है और रिजर्व एसेट्स जो है वो कम है, तो हम एक तरीके से नेट क्रेडिटर नहीं है, नेट डेटर ही हैं। अब इसी के बाद हम समरी में लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर के जो भी कंसिडरेशंस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं यहां पे। तो ग्लोबल डिमांड जो है वो इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे काफ़ी गहरा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड डिक्लाइन हो रही है। एक्सपोर्ट आउटलुक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं नज़र आ रहा है, फ्लैट ही नज़र आ रहा है, जैसा लास्ट ईयर था वैसे ही अभी रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट बास्केट और डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का रूट अपना रहा है ताकि ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर सके। और इसी दौर में इंडिया को जो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है वो साउथ एशियन कंट्रीज से ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाने लगी हैं, जिसमें बांग्लादेश और वियतनाम टॉप पे हैं, जो कि अपने एक्सपोर्ट को ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। वियतनाम अपने मशीनरी और इक्विपमेंट को, कंप्यूटर्स, प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इंडिया के पास ज़्यादा पोटेंशियल है कि ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल प्रोडक्ट्स, उस स्केल के प्रोडक्ट्स भारत बना सकता है। ये एडवांटेज बांग्लादेश और वियतनाम के पास नहीं है। इंपोर्ट साइड की अगर हम बात करें तो अनसर्टेनिटी अभी भी चल रही है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो थमेगा कि बढ़ेगा, और जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो वो इंडिया के पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट इंपोर्ट्स पे प्रेशर तो क्रिएटेड रहेगा। लेकिन नॉन ऑयल, नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स की बात करें तो ये ग्रोथ सेंसिटिव हैं, ये उसमें उतना स्लो डाउन नहीं देखने को मिलेगा, और हमारी जो ग्रोथ है वो रेजिलियंस वाली होने वाली है। यानी हम इंपोर्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और साउथ एशियन कंट्रीज़ के द्वारा जो कंपटीशन हो रहा है उसको हम बाईपास कर सकें। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इस लेक्चर के अगले पार्ट पे, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक लेक्चर 7 के हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।